پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر پر اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے سامنے شمع روشن کر کے پشاور دہشت گردی کی مذمت کی گئی۔ شہداء اور زخمیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ تقریب میں خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ تفصیلات وسیم کاظمی بتائیں گے۔ پشاور میں دہشت گردی کے المناک واقعے پر جہاں پاکستان بھر میں تمام مکاتب فکر کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں اوورسیز پاکستانیوں میں بھی تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے سامنے اوورسیز پاکستانیوں نے شمع روشن کر کے پشاور مسجد میں ہونے والے خودکش حملے کی مذمت کی۔ شرکاء نے شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا۔ اس ایونٹ میں مرد و خواتین سمیت بچوں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر حکومت پاکستان سے دہشت گردی کے واقعات روکنے اور دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا مطالبہ کیا۔ آج یہاں پہ پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے لندن سے تمام مسلمان شیعہ سنی یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ سولیڈیرٹی شو کریں جو وکٹمز ہیں پشاور بلاسٹ کے، اور ہم سیکیورٹی اداروں سے اور تمام جو بھی حکومت میں لوگ ہیں ان سے کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے واقعات کو روکا جائے، مسلسل ہونے والے واقعات کو روکا جائے، اور ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں کہ دہشت گرد کہاں سے آئے تھے، ہمیں یہ چاہیے کہ آپ نے ان کو کیفے کردار تک پہنچایا کہ نہیں۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے ایز اے ہول جو ظلم و بربریت پشاور میں ہوئی ہے وہ واقعا ناقابل برداشت ہے، اور ہماری جو ہے نا کہ ہم پر زور مذمت کرتے ہیں اس جنایت اور ظلم و بربریت کی۔ ہم صرف امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ان لوگوں کے جو خون ہے وہ رائگاں نہ جائے۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی لوگوں کو سوچنا پڑ رہا ہے۔ معصوم بچے، بزرگ، جوان اگر جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ کیا سوچیں گے کہ ایک مسلمان ریاست میں جب آپ جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ لوگوں کو کیا دیں گے؟ ظلم کے دن بڑے نہیں ہوتے، ان کے گریبانوں میں ہمارے ہاتھ ہوں گے اور ہم ان دہشت گردوں کی ناک کو زمین پر رگڑیں گے انشاءاللہ۔ میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو شہید ہو رہے ہیں، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ We are gathered here together for the atrocities that took place on Friday in the Friday prayers in Peshawar. We condemn the killings of our innocent brothers, our innocent children. I am here because of the death of the innocent people that were in that mosque that got killed in Pakistan. And I want that whoever blew up or whoever, I want justice for. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر تبرید حسین، سید تقی جعفر، مسلمان رضوی، زید حیدر روان، شیخ ہر شبیری، حسین شیرازی اور دیگر معززین اور دیگر شخصیات نے کہا کہ پاکستان میں فرقہ واریت نہیں ہے، تاہم دہشت گردی کے ایسے واقعات کو مخصوص مکتبہ فکر سے جوڑنا سازش کا حصہ ہے جس کو ناکام بنا کر دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیا جائے۔ And all of us are here tonight to show our solidarity with the victims, with the families of all those martyred in Imamia Mosque in Peshawar. شمع روشن کر کے شہداء پشاور سے اظہار یکجہتی کرنے والی خواتین اور بچوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے ظلم و بربریت کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ دشمن طاقتیں پاکستان کو فرقہ وارانہ دہشت گردی کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، حکومت پاکستان ایسے دشمن عناصر کو سختی سے کچلے۔ خواتین اور بچوں نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر جسٹس فار پشاور، شیعہ سنی اتحاد زندہ باد اور دہشت گردی کے خلاف نعرے درج تھے۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن کے سامنے مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے آج مظاہرے میں شرکت کی اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جانے چاہیے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ برمنگھم کمیونٹی سینٹر میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یوکے کے زیر اہتمام آل پارٹیز کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی جس میں برطانیہ بھر سے تقریباً 14 کشمیری پارٹیز کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس ختم کرنے کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے بھی شرکاء نے تجویز پیش کی۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔
जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यूके के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शुरा ने भारतीय हुकूमत के गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम की सख्त मजम्मत की। उनका कहना था कि 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने रियासती आर्टिकल्स में तब्दीली करके कश्मीरियों पर शब खून मारा। शुरा का कहना था कि कश्मीरी क़यादत को नजरबंद करके भारत ने रियासती आवाज बंद करने की भोंडी कोशिश की। मकबूजा वादी में लॉकडाउन, कश्मीरियों के खिलाफ इकदाम और पाबंदियाँ इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हैं। आलमी बरादरी इनका नोटिस ले। शुरा ने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का बाकायदा आईनी सूबा बनाने के लिए अस्करी और सियासी क़यादत के दरमियान मुशावरत के अमल पर भी इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस में तब्दीली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। कुछ कश्मीरी हलकों में इस हवाले से अबहम पाया जाता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कायदीन और दीगर जमातों के नुमाइंदों का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कोई भी फैसला करने से पहले हुकूमत पाकिस्तान तहरीक आज़ादी कश्मीर को पेश नजर रखे। इस हवाले से तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को एतमाद में लिया जाए। हमें कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको एज ए टोटलिटी देखना चाहिए। किसी एक हिस्से पर ज़्यादा जो है कॉन्सेंट्रेट करना वो हमारे मफाद में नहीं। हम गिलगित बल्तिस्तान इशू जो है उसको वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के सामने जो है वो बिल्कुल एक पीसफुल अंदाज में ले जाना चाहिए। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए और उन मायदात की खिलाफ वर्जी न की जाए और हम तकसीम कश्मीर की किसी भी जो तजवीज़ की जो है मज़ामत करेंगे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के कायद और हमारे रहनुमा जनाब केश खुर्शीद और जस्टिस मजीद मलिक साहब, उन लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को 1962 में कह दिया था कि इसको आप आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल करें। 14 से ज़ायद जो कश्मीरी सियासी तंजीमें हैं उनके नुमाइंदगान ने यहाँ पे शिरकत की और सबका एक ही मौक़िफ़ था कि कश्मीर एक इकाई है और इसकी तकसीम कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर नाकाबिले तकसीम वादत है, वो हिंदुस्तान की यूनियन टेरिटरी बने या पाकिस्तान का कोई प्रोविजनल सूबा। रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी वो रियासत के दोनों अतराफ यानी सीज़ फायर लाइन के दोनों अतराफ सबका इस पे इत्तफाक है कि किसी तरह की भी तकसीम के खिलाफ हम मज़ामत करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर 2.25 करोड़ लोग बसते हैं और जो इंसान हैं उनके अपने हकूक़ हैं। जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि तकसीम कश्मीर की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। जम्मू कश्मीर एक वादत है और उसकी किसी भी तकसीम को रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी कबूल नहीं करेंगे। शुरा का कहना था कि कश्मीर काज के लिए पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी कम्युनिटी का भरपूर साथ दिया, जिस पर कश्मीरी कम्युनिटी उनकी तहदिल से शुक्रगुजार है। शुरा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम के मकामी होटल में ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टरों ने पाकिस्तान के 40 बड़े शहरों में गरीबों और बेसहारा लोगों को फ्री इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने वाले इंडस अस्पताल के लिए फंड रेजिंग डिनर मुनक्किद किया। पाकिस्तान के मारूफ मज़ाहिया फनकार और टीवी आर्टिस्ट सुहेल अहमद अजीजी ने शिरकत करके फंड रेजिंग की और मज़ाहिया जुमलों के साथ शुरका को खूब महसूस किया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 40 शहरों में गरीबों के लिए बिला तफरीक रंगो नस्ल काम करने वाला इंडस अस्पताल तकरीबन 4.5 लाख से जायद माहाना फ्री लोगों का इलाज कर रहा है। इस सिलसिले में ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टरों ने गुज़िश्ता रोज बर्मिंघम के मकामी होटल में चैरिटी डिनर मुनक्किद किया, जिसमें अस्पताल के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी खान सुहेल अहमद अजीजी ने खुसूसी शिरकत की। उनके अलावा इब्राहिम जमाली, डायरेक्टर इंडस अस्पताल नेटवर्क बरतानिया समेत दीगर अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौका पर स्टेज सेक्रेटरी और फंड रेजिंग के फराइज सुहेल अहमद अजीजी ने बड़े तरीके से अदा किए और शुरका को बताया कि इंडस अस्पताल पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसमें 100% बगैर किसी लालच और सिफारिश के जरूरतमंदों और गुरबा का इलाज आला मियार के मुताबिक किया जा रहा है। इस दौरान सुहेल अहमद अजीजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तान का कीमती असासा है और परदेश में रहकर जितनी फिक्र उनको होती है उतनी वहाँ पर रहने वालों को भी नहीं होती। ये पाकिस्तान का वो हॉस्पिटल है जो वाहिद हॉस्पिटल है जो टोटली फ्री ऑफ कास्ट ये खिदमत कर रहा है मरीज़ों की। कुछ अस्पताल चैरिटी इकट्ठी करते हैं और उनमें परसेंटेज होती है, फिर वहाँ इलाज मुआवजे में 30% हम फ्री करते हैं, बाकी 70% से हम चार्ज करते हैं या 50% फ्री करते हैं, 50% चार्ज। तो मेरा जो अपना मुशाहिदा है और जो मैंने ख़ुद देखा है इंडस हॉस्पिटल के हवाले से, ये इनके पूरे अस्पताल के अंदर कोई भी कैश काउंटर नहीं है।
तो ये मैं समझता हूँ कि ये दुनिया की एक बेहतरीन मिसाल है। इस दौरान इंडस अस्पताल के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी, डॉक्टर शब्बी अहमद, डॉक्टर शहाब कुरैशी, डॉक्टर रशीद भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज की मदद से फलाही अस्पताल गरीबों की बिला तफरीक इलाज कर रहा है। ये फंड रेजिंग एक ऐसे हॉस्पिटल के लिए हो रही है कि जो गरीब से गरीब आदमी भी जाए तो पूरा फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। इन्होंने स्प्रेड किया था कराची से, अब लाहौर में भी हॉस्पिटल बन रहा है। लेकिन मेरी यानी दरख्वास्त, हम जो जितने भी यहाँ ओवरसीज हैं सारे, हम इमरान खान से लेके बेबरारुल हक और सबको यहाँ तक हम ये कंट्रीब्यूट इनमें करते आए हैं। बर्मिंघम में इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क के तहत से हमने चैरिटी डिनर का एहतमाम किया है। इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क पाकिस्तान का नेशनल हेल्थ सर्विस है, जिसमें गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं पिछले 15 साल से ज़्यादा। और इस मामले में बड़े बड़े हॉस्पिटल पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तामीर किए जा रहे हैं। आज पाबंदियाँ खुली हैं तो हम दोबारा UK में आए हैं। यहाँ हम एज ए रजिस्टर्ड चैरिटी इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क की रजिस्टर्ड चैरिटी है। बर्मिंघम में आज इस हॉल में आप देख रहे हैं कि खचाखच भरा हुआ है और इनका यकीनन लोग इस नियत के साथ आए हैं और वो अपने लिए कर रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन करेंगे इंडस हॉस्पिटल, क्योंकि अब हम इंडस हॉस्पिटल कराची को एक्सपेंड कर रहे हैं कोई 1350 बेड में। इंडस अस्पताल और इंडस हेल्थ नेटवर्क ने पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त काम किया है। गरीब आदमी और गुर्बत के लिहाज से सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब मिलजुल कर काम करें, सब जो है पैसे जमा करें और इंडस हॉस्पिटल और इंडस हेल्थ नेटवर्क की मदद करें और सपोर्ट करें, इसलिए कि ये लोग जो है वो मुफ्त इलाज कर रहे हैं। तकरीब के दौरान शुरका को फ्री इलाज कराने वाले मरीजों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री और अस्पताल में जारी नए प्रोजेक्ट्स दिखाए गए। शुरका का कहना था कि मुल्क और कौम के लिए डॉक्टर अब्दुल बारी खान जैसे मोहसिनों का भरपूर साथ देना चाहिए, जो मुआशरे की अच्छाई के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की फलाही तंजीम APPSU के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान के गरीब और नादार लोगों को मुफ्त इलाज और इमदाद के लिए ब्रेडफोर्ड के मकामी रेस्टोरेंट में चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टरों की बड़ी तादाद के अलावा कम्युनिटी ने शिरकत की और दिल खोल कर एहतियात दी है। मज़ीद अहवाल जानते हैं वक़ार बाबर मुगल की इस रिपोर्ट में। तकरीब में बरतानिया भर से पाकिस्तानी डॉक्टरों और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तानी डॉक्टरों और बिजनेस कम्युनिटी ने दिल खोलकर एहतियात भी दिए। तकरीब के मेजबान डॉक्टर गुलाम अब्बास, डॉक्टर उस्मान खान, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने इस मौके पर कहा कि हमारी फलाही तंजीम पाकिस्तान के गरीब और नादार लोगों की भरपूर खिदमत कर रही है और हम आपके एहतियात 100% जरूरतमंदों पर खर्च करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों मियांवाली, टोबा टेक सिंह, दीना और जेहलम में मोबाइल कैंप के जरिए फ्री अदवियात से गरीब आवाम का इलाज कर रही है। I am very proud of APPSUK Foundation because they do enormous amount of work in health, education, women empowerment, raising funds. We also have Sadqa Jariya programs and Qarze Husna programs, so it is remarkable. यहाँ पे हमारे वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग मोबाइल हेल्थ यूनिट, एक हमने मियांवाली में, एक टोबा टेक सिंह में और एक दीना में सेटअप किया है। इसके अलावा हमारे जो वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए फंड रेजिंग हुई है और कम्युनिटी ने पाकिस्तानी म्यूज़िक और माउथ वाटरिंग पाकिस्तानी जो फूड है वो एंजॉय किया। तकरीब से डॉक्टर साइमा रऊफ, डॉक्टर नादिया अहमद, डॉक्टर राशिद रियाज और दीगर ने भी खिताब किया। अब हमारी ये क्लासेस, हमारा ग्रुप टेलीग्राम पे है, एप्स UKF फाउंडेशन प्लैब 2 ग्रुप, जिसे मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर फारूक, जो कि एक सीनियर GP हैं और इसमें 800 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं और these classes go free every Saturday। इसके अलावा भी एजुकेशन जो टीम है वो GCSE की क्लासेस लेती है। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर डॉक्टर सुंदस चौहान, डॉक्टर अंदलीप और दीगर को अवार्ड भी दिए गए। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का कहना था, खवातीन डॉक्टरों ने हमारे शाना बशाना काम किया है और ये खवातीन हमारे तंजीम में रीढ़ की हड्डी की मानद है। मैं फाउंडर हूँ APPSUK फाउंडेशन का। ये चैरिटी 31 प्रोजेक्ट चलाती है और 0% एडमिन कॉस्ट पर। हमारे प्रोजेक्ट्स का मकसद है कि जो हम यहाँ के बच्चे हैं, हम उन बच्चों को लीडरशिप, नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन सिखाएं,
میٹریمونیل کو ایڈریس کریں. اس کے علاوہ پاکستان میں جو غربت ہے ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں سوئنگ سینٹر بنا کر, اپر لم پروستھیسس, لوور لم پروستھیسس, فری موبائل ہیلتھ کیئر. اس طرح کے ہمارے 31 پروجیکٹس ہیں. Some summaries to share with the community about the different projects that I've been leading, and also the chair he couldn't make it today has been doing a tremendous job as well as all the other governing body members, and I'm just very excited to share those updates with everybody. I really appreciate the participation of lots of people who came here today, and they encourage our work that we have done, and I'm hoping that their persistent encouragement will help us to do more and more for the community. تقریب میں میوزک کا اہتمام بھی کیا گیا تھا جس سے حاضرین خوب محظوظ ہوئے. دائرہ غیر میں ڈاکٹرز کا مقدس پیشے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک میں بے سہارا اور نادار لوگوں کی امداد کرنا کسی کارنامے سے کم نہیں. کیمرہ پرسن امارا کے ساتھ وقار بابر مغل, 92 نیوز, بریڈ فورڈ. دنیا بھر میں بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کی بڑھتی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے دبئی میں دھنو کے نام سے نئی کرپٹو کرنسی لانچ کر دی گئی. تقریب میں پاکستان, بھارت, امارات سمیت مختلف ممالک کی بزنس کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی. دلکش تقریب کا مزید احوال جانیے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. دنیا بھر میں ڈیجیٹل کرنسی کی مقبولیت نے کرپٹو کرنسی کے نظریے کو مزید تقویت دے دی ہے. معروف نجی کاروباری گروپ نے مقامی قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دبئی میں بلاک چین ٹیکنالوجی سے منسلک نئی کرپٹو کرنسی دھنو اور ڈیجیٹل ایکسچینج دھنو ایکس لانچ کر دی. ڈیجیٹل کرنسی کی لانچنگ کے میگا ایونٹ میں ڈیجیٹل کرنسی سے منسلک افراد اور بڑی تعداد میں کاروباری شخصیات نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نئی کرپٹو کرنسی دھنو کے فاؤنڈر سمیت دیگر سپیکرز کا کہنا تھا کہ ترقی کے لیے جدید دور کے تقاضوں کو اپنانا ہوگا. ڈیجیٹل کرنسی وقت کی ضرورت ہے. دنیا ڈیجیٹل کرنسی کی جانب شفٹ ہو رہی ہے. بڑے بڑے ممالک اب اپنے بینکنگ سسٹمز ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. ڈیجیٹل کرنسی گروپ کے فاؤنڈرز بری جے شرما اور سچن کمار کا کہنا تھا کہ دھنو پہلی کرنسی ہے جس کو آسانی سے آپ روپے میں ایکسچینج کر سکتے ہیں. پاکستان, بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک کی حکومتوں اور کاروباری کمیونٹی کو بلاک چین ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی. یہ ایک ٹائم کے بعد انکریز ہوا ہے. آلموسٹ 4 مہینے کے بعد پرائز یہ لے کے آئے ہیں ہم, بیکاز وی ہیو بلڈ اے کمیونٹی. اور جو بلاک چین ٹیکنالوجی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو اس کی بیک بون بنے گی ان فیوچر, دیٹ از گوئنگ ٹو بی انٹیگریٹڈ ود دا ڈفرنٹ گورنمنٹ آرگنائزیشنز اکراس دا گلوب, اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو گیو اے مور ایڈوانٹیج ٹو دا نارمل پیپل. Our focus is to educate the people who do not know blockchain, who are not tech savvy. So we have to educate them so that they can learn and they can earn. ہندوستان پاکستان میں اگر آج بولوں تو بے روزگاری کی بات کریں یا ہم لوگ ویلتھ کی بات کریں پر پرتی ویکتی آئے کی بات کریں تو وہ بہت کم ہے. ہماری کوشش ہے کہ دھنو کے مادھیم سے, دھنو کے دوارا ہم لوگوں تک ہیلتھ بھی پہنچائیں, ویلتھ بھی پہنچائیں, لوگوں میں ایک ٹرسٹ بلڈ کریں کہ وہ لوگ کرپٹو کو یوز کریں. بیکاز مارکیٹ میں کوئی بھی انسان بولے کہ میرے کو 50 روپے کا یا 100 ہندوستانی روپے کا یا پاکستانی روپے کا اگر ہم لوگ کوائن خریدنا چاہتے تو نہیں خرید سکتے. بٹ دھنو ایکس از دا اونلی پلیٹ فارم جہاں پر کوئی بھی آدمی صرف 100 روپے سے بھی اپنا کوائن بائی کر اپنی ایسٹ کی شروعات کر سکتا ہے. متحدہ عرب امارات کی معروف کاروباری اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے نئی کرنسی کے اجرا کو خوشائند قرار دیا اور دھنو ایکس کے فاؤنڈرز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. ایونٹ کے اختتام پر روایتی عرب بیلے ڈانس اور ڈھول کی تھاپ نے ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے اور شرکا نے پنجابی گانوں پر خوب بھنگڑے ڈالے. سید مدثر خوشنود, 92 نیوز, دبئی, متحدہ عرب امارات. امریکی ریاست ورجینیا کے شہر آکوقوان میں مقامی انتظامیہ نے مسجد الحسین کا دورہ کیا جہاں پہلے ایک گرجا گھر تھا جسے مقامی مسلمان کمیونٹی نے خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا تھا. انٹرنیشنل پیس مشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ظفر اقبال نوری اور دیگر شخصیات نے استقبال کیا. مہمانوں کو مسجد کے مختلف حصوں کا دورہ کرایا گیا. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں خرم شہزاد کی یہ رپورٹ. یہ خوبصورت مسجد کچھ عرصہ پہلے ایک گرجا گھر تھی اور اب یہاں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں. امریکہ کے شہر آکوقوان میں اس مسجد کو پاکستانی کمیونٹی نے چرچ انتظامیہ گرجا گھر سے خرید کر تعمیر کیا. اس کا نام مسجد الحسین رکھا جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے. مسجد الحسین میں نماز دسمبر 2021 کے آخری جمعہ کو شروع کی گئی تھی. آکوقوان کی انتظامیہ کے وفد نے گزشتہ روز مسجد کا دورہ کیا. وفد میں پرنس ولیم کونٹی کی چیئر ایٹ لارج بورڈ آف
सुपरवाइजर मैडम NB वेहलर समेत मुख्तलिफ शख्सियात शामिल थे। इंटरनेशनल पीस मिशन के चेयरमैन और मस्जिद डायरेक्टर और इमाम डॉक्टर जफर इकबाल नूरी, शेख मोहम्मद सिद्दीक, राहील शेख, तनवीर राना, इफ्तिखार बुच्चा, इकराम चट्ठा, अली चौधरी और दीगर बोर्ड मेंबर्स और मेंबरान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मेहमानों ने मुस्लिम मजहबी इदारों की माशरती खिदमात को सराहते हुए अपने ताउन का यकीन दिलाया। टाउन मेयर मिस्टर अर्नी बोटा ने मस्जिद की अंदरूनी ताज़ीन और आयश की बहुत तारीफ की और कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए मस्जिद के साथ मिलकर काम करने का इंदिया दिया। पुलिस चीफ ने कहा कि हम अमन व अमान और आपके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं, आपको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। Sad to see them go. We're very happy to see you come here, though, and we look forward to a similarly very, very friendly and positive relationship. You also, frankly, provide an opportunity being here that didn't exist in the same way with Ebenezer Baptist Church, because quite candidly, you give us the opportunity to provide a significant amount of cultural education. टाउन इंतजामिया ने भी इस मौके पर अपने ताउन का यकीन दिलाया। डॉक्टर जफर इकबाल नूरी ने कहा, ये मस्जिद टाउन पीस, हारमनी और मोहब्बत को फरोग देने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ बैनुल मज़ाहब हम आंगी के लिए भी काम करेगी। मस्जिद इंतजामिया की जानब से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को यादगारी असनाद पेश की गयी। बाद में मेहमानों को जोहराना भी दिया गया। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। कुरान पाक की नशर व इशाअत में मलेशिया के पहले और दुनिया के दूसरे बड़े इदारे नशरुल कुरान और मापे मलेशिया के इश्तराक से शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सेमिनार का इनाकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी डिप्टी मिनिस्टर फेडरल टेरिटरीज ऑफ मलेशिया जलालुद्दीन बिन इलियास थे। जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में देखिए। कुरान पाक की नशर अशात में मलेशिया के पहले और दुनिया के दूसरे बड़े इदारे नशरुल कुरान और मापेम मलेशिया के इश्तराक से शब मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी डिप्टी मिनिस्टर फेडरल टेरिटरीज ऑफ मलेशिया जलालुद्दीन इलियास थे। तकरीब में पाकिस्तान, फ़लस्तीन, अफ्रीका, ब्रुनाई के सफारतकारों, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों के नुमाइंदों, उलमाए कराम, असातिज़ा, मजहबी स्कॉलर, तलबा तालिबात समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। कुरान पाक की तिलावत के बाद मलेशिया का कौमी तराना भी बजाया गया। मेहमान खुसूसी डिप्टी मिनिस्टर फेडरल टेरिटरीज ऑफ मलेशिया जलालुद्दीन बिन इलियास ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, उम्मत मुस्लिमा के किबला अव्वल बैतुल मक़दस पर इसराइल के गैर कानूनी कब्जे की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के रहनुमाओं पर जोर दिया कि इसकी रिहाई के लिए अपना दीनी फरीज़ा दयानतदारी से अंजाम दें। उन्होंने बेरहम सफाक इसराइली अफवाज के हाथों बेगुनाह मासूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी के नाकाबिले माफी जराइम पर आलमे इस्लाम के रहनुमाओं की खामोशी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर किबला अव्वल बैतुल मक़दस के इमाम शेख डॉक्टर अकरमा साबरी का खसूसी वीडियो पैगाम भी नशर किया गया। पुत्रा जाया में कायम कुरान हकीम की नशर इशात के दुनिया के दूसरे बड़े इदारे नासरुल कुरान के दरो दीवार पर मलेशिया और फ़लस्तीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ इस्लामी फनकारों की तैयार करदा खूबसूरत कैलीग्राफी आवेजा की गई थी। इदारे की आर्ट गैलरी में कुरान मजीद फुरकान हमीद के नायाब नुस्खे भी ज़ियारत के लिए रखे गए हैं। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मापेम मलेशिया के सदर हाजी मोहम्मद आजम बिन अब्दुल हमीद और अदारा नशरुल कुरान के चेयरमैन दातू अब्दुल लतीफ मिरासा ने फ़लस्तीन और किबला अव्वल की आज़ादी के अलावा कश्मीर समेत दुनिया के तमाम मजलूम मुसलमानों की दाद रसी के लिए उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद व यकजहती पर जोर दिया। This is an important calendar of the Muslims all around the world. There's a lot of things that we should learn on the reminders that the Prophet has given to us.
But we know very well that the situation of the Ummah is in a very bad stage. We are very divided. The things that are happening to the Muslims are, it's unacceptable. But whatever it is, today this occasion is to rekindle the spirit of the Ummah. That's the only way that we can handle all these issues. If we still we are united, we are together in all the issues of the Ummah, and we wish that the Ummah will regain and reclaim our stewardship of the world. I think the world needs the Ummah to come back. One thing what we have seen today, in conjunction with the Isra wal Mi'raj, I think that Cikgu Azmi with MAPIM has bring back the importance of Malaysian, the Ummah, together with all the other Muslims, to give a new trust to help and to liberate Masjid Al-Aqsa and also Palestinians. And this is a very important occasion because we have this struggle for some time. I think, and then there's a lot of activities around the world, a lot of issues around the world, but we cannot forget the liberation and the struggle of the Palestinian, and also to make sure that we get back the control of the Masjid Al-Aqsa. तकरीब के आखिर में हाजी मोहम्मद आज़मी बिन अब्दुल हमीद की बैतुल मक़दस पर लिखी गई किताब की रूनुमाई की गई। जावेदुल रहमान, 92 न्यूज़, मलेशिया। न्यूजीलैंड ने रूस के दर्जनों शहरियों के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने कहा कि नए क़वानीन रूसी ओलिगार्क पर सफरी पाबंदियां आयद करेंगी और मॉस्को में रजिस्टर्ड पुरआसाइश कश्तियों, बहरी जहाज़ों और तैयारों को न्यूजीलैंड की फ़ज़ाई हदूद या पानियों में दाखिल होने से रोकेंगे। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने कहा है कि पाबंदियां न्यूजीलैंड में रूसी असासों को मुंजमद करने, लोगों और कंपनियों को दूसरे ममालिक की तरफ से आयद पाबंदियों से बचने के लिए अपना पैसा और असासे न्यूजीलैंड मुंतकिल करने से रोकने और सुपर यॉट, बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ को रोकने की सलाहियत फराहम करेंगी। न्यूजीलैंड की हुकूमत के मुताबिक वो यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ मज़ीद पाबंदियां आयद करने के लिए कानून साजी करेगी। रूसी हुकूमत ने गैर दोस्त ममालिक और खित्तों की फहरिस्त की मंजूरी दे दी। फहरिस्त में शामिल ममालिक ने यूक्रेन में रूसी मुसल्लह अफवाज के खुसूसी फौजी ऑपरेशन पर रूस के खिलाफ पाबंदियां आयद की हैं या उन पाबंदियों में शामिल हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक रूसी हुकूमत ने यूक्रेन में रूसी मुसल्लह अफवाज के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद रूस के खिलाफ पाबंदियां आयद करने या उनमें शामिल होने वाले ममालिक की फहरिस्त जारी की, जिसके मुताबिक वो ममालिक अब रूस के दोस्त नहीं रहे। रूसी हुकूमत की जानिब से जिन ममालिक की फहरिस्त जारी की गई उनमें अमरीका, कनाडा, यूरोपीय यूनियन की रियासतें, बरतानिया बशमूल जर्सी, एंगुएलिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, जिब्राल्टर, यूक्रेन, मॉन्टीनेग्रो, स्विट्जरलैंड, अल्बानिया, एंडोरा, आइसलैंड, मोनाको, नॉर्वे, सान मारिनो, शिमाली मैकेडोनिया, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ताइवान शामिल हैं। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।